Assalamualaikum dear students, I'm Rabia Manzoor and I'm here again discussing with the lecture of normal distribution. In today's lecture we are going to discuss the quantiles, or you can say the quartiles of normal distribution. We have discussed this concept earlier, but now I will tell you how to solve the questions by using standard normal table. Okay, so let's suppose we have a probability which that's range is from 0 to 1, and then the pth quartile of standard normal distribution is represented by z of p. Now what is meant by the quartile of standard normal distribution? That means the value of the random variable z at particular point throughout in this normal range. सो हमारे पास बेसिकली हमने जो फाइंड आउट करना है वो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे पहले एक स्पेसिफाइड एरिया होगा जिसे हम p कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसकी रेंज 0 से 1 तक होगी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय 0? 0 मीन्स यू आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर नॉर्मल कर्व. As you continue moving, that will increase the probability. Like here we have almost 25% area, and further we have 50%, and then 75, 80, 90, and at this point you have reached the 100% area of your normal curve. So I hope this diagram is clear now. We want to find the value of z, which contains a particular area or probability below that particular point. Now, if I say probability of z random variable is p, that means this is the point below which we have this particular area p. Suppose, according to this diagram, if I say this is the point zp and this will be the probability, I make it clear by providing you the exact layout. Okay, right. This is the probability or the area which is represented by small p, and in the form of phi, capital phi, as this is the cumulative probability, and phi of zp will represent this probability. That means you can write this probability in the form of phi as I have written in this text. Now on right side we have a probability, and you want to find that particular point or the value of standard normal random variable. So you will shift the phi on the right side, that you will take its inverse. Now zp is equals to phi inverse of p. So see, we have already discussed it earlier. This is called the inverse CDF or the quantile. Now we want to find the value of z random variable where we have a probability. So we will use table number 10. It's basically table number 10A. Yes, it's table number 10A, which we will use to find the value of z random variable if we have probability in our given question. Here we have an example. Now we have a question number 5 of your first exercise of chapter number 10. We have question number 5 in its part B. In a standard normal distribution, find a point that has 97.5% area below it. Now, we first look at the part 1. We want to find a point. A point means a value of a random variable, which is z. So we want to find the value of random variable z if we have this area below it. We have 97.5% area below this particular point. Now,
If I say 97.5% area, that means this point will be somewhere on the right side of its center. As you know, 50% area we have mean at the 50% area which is in the center of our curve. So obviously 97.5% means the point that has 97.5 area below it. यानी कि अगर आप ये देखें कि एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे पहले इतना एरिया एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है वो कर्व के राइट साइड पे होगा. तो मैं यहाँ पे रेंडमली एक पॉइंट लाइन मार्क कर रही हूँ. इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे पहले कितना एरिया है. .975. So here we have this point, right. मुझे ये पॉइंट, इस पॉइंट पे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे पहले 97.5% एरिया है. अगर आप टोटल 100% कर्व को देखें तो अगर 97.5% एरिया है तो बाकी का जो एरिया बचा वो 2.5% है जो कि इस पॉइंट से आगे एग्जिस्ट करता है और इससे पहले 97.5% एरिया एग्जिस्ट करता है. अगर मैं इसका जर्नल थ्योरम लिखूं तो वो होगा प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन p इज इक्वल्स टू p, जो मैं ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ. मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. यू डोंट नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट राइट z ऑफ p. अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट से पहले वो इतनी है 0.975. इस p की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है. मुझे सवाल में मैथमेटिकल फॉर्म नहीं गिवन थी, मैंने उसको खुद लिखा है. तो एक ऐसा पॉइंट जिससे मैं क्वांटाइल भी कहती हूँ, जिससे लेस एरिया जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.975 है. ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे सवाल में गिवन था कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करूँ जिससे पहले 97.5% एरिया एग्जिस्ट करता है. आपको पता है कि ये जो क्यूमुलेटिव फॉर्म होती है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है फाई ऑफ z. इसकी जो सबस्क्रिप्ट में मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है जो कि गिवन थी या मेंशन थी. फाई ऑफ z राइट साइड पे 0.975 यानी कि वो एरिया मतलब वो पॉइंट जिससे पहले एरिया जो है वो 0.975 है. तो यहाँ से आपने z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जाके फाई इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से आप फाई इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग टेबल नंबर 10b which is the table of quantiles. Yes, here we have a table of quantiles. We need to find the value of phi inverse 0.975. Obviously, we will see 0.97 in 5th column. Okay, I think yes, 0.97. Here we have 0, 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप इसको ऊपर जाके देखेंगे तो ये यही कॉलम निकलेगा. मैं इसको मार्क करती हूँ. 0.97 को 5 में देखा तो मेरे पास ये वैल्यू आई 1.9600. आप इसको 1.96 पे लिख सकते हैं. So the point is, the value of this point is 1.96. Okay. Right. Now move to the next question. Okay, I first check it from the statement. Second part is a point that has 97.5% area above it. यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे, मतलब जिससे आगे की तरफ इतना एरिया एग्जिस्ट करता है. पिछला सवाल जो था वो ये था कि इस पॉइंट से लेस 97.5% एरिया है. अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे 97.5% एरिया एग्जिस्ट करता है.
तो इससे पीछे ऑब्वियसली आपके पास 2.5% एरिया एग्जिस्ट करता होगा. See, we have this curve. Okay. एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे 97.5% एरिया एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो इस लेफ्ट साइड 50% से लेस ही होगा ना, जिससे आगे 97.5% एरिया एग्जिस्ट करता है. तो वो पॉइंट तकरीबन होगा आपके पास यहाँ पे. इससे आगे कितना एरिया है? 0.975. इससे आगे का एरिया आपके पास 0.975 है. तो मैंने यहाँ पे इसका जनरल थ्योरम लिखा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज p. इससे आगे की प्रोबेबिलिटी p है. जब मैं इसको अपने सवाल के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी तो मैं एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे 97.5% एरिया. See, in previous part we write the sign of less than sign. Now in this part we are using greater than sign. एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे, मतलब इससे आगे का एरिया इतना है. ओके, इस पॉइंट से आगे का फर्दर एरिया इतना है. ओके, ग्रेटर देन का साइन को आपको पता है, जब हम लोग 5 में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 1 - 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ग्रेटर देन को साइन को हमने इस तरह से लिखा. अब आप देखें कि अब मुझे इसको फाई ऑफ z की वैल्यू निकालनी है. फाई ऑफ z इज, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी और इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी, तो आ जाएगा 1 - 0.975 इज इक्वल टू फाई ऑफ z. फाई ऑफ z इज इक्वल टू, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास ये आ गया. ये देखें, एक ऐसा पॉइंट है जिससे पहले एरिया जो है वो 2.5% है. ये हमें उससे मिल गया. हम पहले जनरल बात कर रहे थे, फिर हमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ने भी वही बात की. इससे जो पहले है 2.5% एरिया, यानी कि 0.025. ओके, एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे इतना एरिया है तो उससे लेस जो है वो इतना एरिया होगा. आपको ये चीज़ पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल हमेशा लेस देन की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है. तो मेरे पास ये पॉइंट जो है, ये दिस पॉइंट, इस पे मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे लेस इतना एरिया है. अब यहाँ से z आप अलग कर लें तो यहाँ जाके फाइन वर्स बन जाएगा और 0.25 आ जाएगा. यहाँ से आप टेबल देखें तो z की वैल्यू आएगी 0.02 को 5 में देख लें. Let me correct it. 0.05 को 0.2 को 5 में देख लें. जीरो पॉइंट 0.02 को मैंने जब 5 में देखा तो मेरे पास आया -1.96. आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा. अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 points such that 2 points that contains 90% central area. 2 points फाइंड आउट करने हैं नेक्स्ट पार्ट में हमने, जिसका जो सेंट्रल एरिया है, यानी कि जिनके दरमियान एरिया जो है वो 0.90 है या 90% है.
See, I have made a little backup for this part C. एक ऐसा पॉइंट, दो ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान एरिया जो है वो 90%, यानी कि ये Z1 होगा और ये Z2, जिसके दरमियान 90% एरिया है। तो ऑब्वियसली बाकी का जो 10% एरिया है वो कॉर्नर्स में बच गया है। कॉर्नर्स में इक्वल बचेगा क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 10% को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 5% यहाँ पे है और 5% यहाँ पे है, यानी कि Z1 से जो पहले का एरिया है दैट इज 5%, 0.05। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास मैंने दो ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो सेंट्रल एरिया है दैट इज 90%। अब मैं इस थ्योरम को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, फाई ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस फाई ऑफ लेस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.90। वेयर, अच्छा, अब मेरे पास दो फाइज हैं और उसका सेंट्रल पार्ट जो है दैट इज 90%। मुझे Z1 और Z2 निकालना है। आपको पता है कि फाई ऑफ Z1 का मतलब क्या है? एक प्रोबेबिलिटी जिससे एक पॉइंट जिससे लेस आपके पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि P दैट इज लेस देन Z1। इसको मैं फाई ऑफ Z1 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, और फाई ऑफ Z1 जो है इसका मतलब है इससे पहले की प्रोबेबिलिटी, Z1 से पहले की प्रोबेबिलिटी। Z1 से पहले की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया 5%। 5% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है और 5% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो Z1 से जो पहले फाई है दैट इज 0.05, यानी कि इससे पहले का एरिया 0.05 है। ओके, अब आपने Z1 निकालना है, फाई यहाँ जाके फाई इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स ऑफ 0.05। लुक इनटू द टेबल। (0.05 को 0 में देखा, 0.05 को मैंने 0 में देखा तो दैट इज -1.6449, -1.6449। अच्छा जी, अब इसका आ जाते हैं इसके ऊपर दोबारा से। मैंने Z1 की वैल्यू फाइंड आउट करी है दैट इज दिस वन। अब आते हैं इसकी तरफ दोबारा। ओके, let's move to the next page. Right now okay, what is going on? ओके जी, ओके ओके गर्ल्स, हमने अब Z2 पॉइंट फाइंड आउट करना है क्योंकि Z1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फाई ऑफ Z2 का मतलब है Z2 से पहले का एरिया, और फाई ऑफ Z1 का मतलब है Z1 से पहले का एरिया। Z1 से पहले का एरिया था, उसके पहले की प्रोबेबिलिटी थी 0.05, ये मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया था। और इससे आपने इसका एरिया, फाई का मतलब होता है उसका एरिया 0.05, यानी कि इससे पहले 5% एरिया था, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, उस पर Z हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन फाई का मतलब होता है उससे पहले का एरिया दैट इज 5%, दैट इज 0.05। अब आप यहाँ से फाई ऑफ Z2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फाई ऑफ Z2 is equals to 0.90 plus 0.05 that is equal to 0.95। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से Z2 आपके पास आ जाएगा is equals to phi inverse of
0.95। जब मैंने फाई को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो मेरे पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं टेबल में देखूंगी, फाई इनवर्स के टेबल में 0.95 को 0, 0.95 को 0 पे देखा तो दैट इज 1.6449। सो Z2 is equals to 1.6449 and Z1 is equals to minus 1.6449। सो ये आपके पास Z1 एंड Z2 की वैल्यूज आ गई हैं जिनके सेंटर में 90% एरिया था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन राइट इट इन द कमेंट और यू कैन मेंशन इट इन द गूगल क्लासरूम। So for the exercise, you can solve all the remaining questions of first exercise of chapter number 10. Thank you so much. Allah Hafiz.